વેલકમ ટુ નામની સ્કૂલ બાળકો. નામની સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે. તમને તો વેકેશનની ખૂબ ખૂબ મજા આવે છે ને બાળકો. હવે આપણે જો બાળકો ભણેલું ભૂલાય નહીં તો આપણે જો પહેલાં બીજામાં જો કે આપણે તો એલકેજી યુકેજીથી જ આપણે સ્વર વ્યંજનની માત્રાઓ શીખતા આવ્યા છીએ, બરાબર. સ્વર કોને કહેવાય, વ્યંજન કોને કહેવાય. અને હવે તો તમે બધા ત્રીજા ધોરણમાં બાળકો પહોંચી ગયા છો, બરાબર. હવે તમને તો બધાને ખબર જ હોવી જોઈએ કે સ્વર કોને કહેવાય અને વ્યંજન કોને કહેવાય. તો તમને આવડશે ને બાળકો બધાને, બરાબર. સ્વર ઓર માત્રાએ, બરાબર. જો સ્વર આપણે સૌથી પહેલાં સ્વરની શરૂઆત કરી તો સ્વર કેટલા હોય છે આપણા 13, બરાબર. તો આપણે સ્વરની શરૂઆત કરીશું બાળકો. તો અ, આ, ઈ, ઉ, ઋ, એ, ઓ, ઔ અને અહ. આ બધા શું થયા આપણા સ્વર. જ્યારે આપણે એલકેજીમાં અને યુકેજીમાં પહેલાંમાં હતા ત્યારે બાળકો આપણે તો સ્વર વ્યવસ્થિત બોલી બધા. કેવી રીતે? તો કે અસે અનાર, આસે આમ, ઈસે ઈમલી, ઈસે ઈક, ઉસે ઉલ્લુ, ઉસે ઊન, રૂસે રૂસી, એસે એડી, ऐसे ऐनक, ओशे ओखली, औशे औगडत, अमसे अंगूर और असे अह. આ રીતે આપણે બધા સ્વરો બોલતા હોય છે ને આપણે બોલવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે. પછી આવે છે બાળકો વ્યંજન. તો આપણે ઓમ જોઈએ તો 34 વ્યંજનો થાય છે આપણા, પણ આપણે અમુક જે અલગ અલગ જે અક્ષર હોય ને એને અવ્યય અક્ષર કહીએ છીએ, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં આપણા વ્યંજનનો અક્ષર શું આવશે? ક. તો આપણે ઇંગ્લિશમાં એને શું કહીએ છીએ? કે એ. પછી આવશે ખ. તો ખને આપણે ઇંગ્લિશમાં કે એચ એ. એમ આપણે એનો અર્થ થાય, ઉચ્ચાર થાય, બરાબર. તો આવશે ગ. તો ગને આપણે ઇંગ્લિશમાં જી એ લખાય. પછી ઘ. તો ઘને આપણે અંગ્રેજીમાં GH એ લખાય, બરાબર. પછી જો અવ્યય શબ્દ આવે છે બરાબર, એને NG લખાય. પછી ચ, ચકલીનો ચ. તો આપણે ચકલીને હિન્દીમાં આપણે ચકલી ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ અને ચ से चम्मच. बच्चों देखो हम पहले ये सारे व्यंजन बोल जाते. क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, फिर च से चम्मच, छ से छाता, झ से जहाज, ज से झरना, फिर ये जो ये शब्द आया है वो, फिर ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ह से फेंट, त से तलवार, थ से थाली, द से दवा, त से तच्चा, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, ब से बर्तन भी होते हैं, भ से भवन, भ से भगत भी होता है, म से मगध, य से यज्ञ, ल से रथ, ल से लट्टू और लहसुन भी होता है, व से वन यानी उपन भी होता है, स से शरबत, स से षटकोण, स से सगड़ी, ह से हिरण, क्ष से क्षत्रिय, त से त्रिशूल, ग्ल से ज्ञानी, श्र से श्रवण. आ બધા જે ક્ષ, ત્ર, જ્ઞ, શ होते हैं ना उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं. हम जो अर्थ हमारे डबल होते हैं, क्ष પછી ત્ર પછી જ્ઞ ने क्ष, ये संयुक्त अक्षर होते हैं. तो बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया स्वर और व्यंजन. अब हम देखेंगे बाराखड़ी. स्वर और व्यंजन के हिसाब से हम बाराखड़ी तो તમને બધાને બારાક્ષર તો બાળકો આવડતી જ હશે ને, કે આપણે પહેલું બીજું ત્રીજામાં પહોંચી ગયા છીએ. તો બારાક્ષરી આવડે તો જ આપણને વાંચતા આવડે. જો બારાક્ષરી ન આવડે તો આપણે વાંચતા આવડે નહીં. તો સૌથી પહેલાં જો સ્વરની માત્રાઓ લીધી છે. અ, આ, ઈ, ઉ, ઋ, એ, ઐ, ઓ, ઔ, અમને અહ. આ રીતે એ સ્વરની માત્રાઓ આવે બધાય. તો આપણે એ જ રીતે આપણે જો ગુજરાતી ને હિન્દીમાં લખવું હોય ને તો ક, કા, કી, કુ, કુ, કૃ, કે, કઈ, કો, કૌ, કમને, કહ, બરોબર. એટલે ક, પછી કને કાનું કા, કને
રસ્વાઈ કી, પછી ચોથો અક્ષર કને દીર્ઘાઈ કી, કને રસ્વાવાળું કુ, કને દીર્ઘાવાળું કુ, પછી રૂને બદલે આપણે ક્રુ કહીએ છીએ, બરોબર. એવા ક્રુવાળા શબ્દ પણ ગણ્યા છે, કૃપા, કૃતજ્ઞ, એવા આપણે શબ્દો જોઈએ છીએ ને બાળકો. પછી આવે છે એ એક માત્રવાળો એટલે કે, પછી બે માત્ર એટલે કઈ, પછી કને કાનો માત્ર કો, કને કના બે માત્રા કૌ, કને માથે મીંડું કમ, કને આગળ વિશે કહ. તો આ રીતે બાળકો આપણે આખી બારાક્ષરી આવી. ગ ગા ગી ગી ગુ ગુ ગે ગઈ ગો ગૌ ગમ ને ગહ, પછી ચ જ, આ રીતે આપણે આખી બારાક્ષરી માત્રા લગાવીને કરી શકીએ છીએ. પછી બાળકો જો એમાં ચિત્ર ગતિવિધિ, એમાં જો માત્રા લગાવેલી છે, બરોબર. તો સૌથી પહેલું આપણે ચિત્ર જો પ્રાતઃ, પ્રાતઃ યાને સુબહ હોતી ને, અને ગુજરાતીમાં આપણે એને સવાર કહીએ છીએ, બરોબર. તો એમાં જો બે મીંડા લગાવેલ છે, હનો એનો અર્થ હ થાય, પ્રાતઃ હ. તો પછી બીજું એમાં સૂરજ, બરોબર. સૂરજનું ચિત્ર દેખાય છે તમને બાળકો બધાને? તો જો એમાં સૂરજના ચિત્રમાં સૂરજમાં શું કેવું છે, રસવાળું કે દીર્ઘાવાળું? કે રસ્વ, અને રસ્વ તો પહેલાં આવે, તો બીજું શું આવે? દીર્ઘ, તો सूरज, तो ये दीर्घ की मात्रा बनेगी. फिर आया शेर, तो शेर के ऊपर भी एक मात्रा है, तो एक मात्रा है तो हम शेर बोलेंगे. फिर आया हाथी, तो देखो बच्चों इसमें ह से शुरू होता है ना, तो ह से एक पास जो एक लेटर है तो हा होता है, वो थी दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? हाथी. फिर नौका, देखो बच्चों नाव दिखाई दे रही है ना, उसको हम नौका भी कहते हैं. एक बच्चा है वो पानी में तैर रहा है, तो नौ के ऊपर दो मात्रा लगाकर और पास में एक रेखा खींचकर हो गया नौका. फिर देखो बंदर, पेड़ के ऊपर जो बैठा आम के वृक्ष पर, वो बंदर दिखाई दे रहा है, वो आम खा रहा है, तो ब के ऊपर चंद्र बिंदी लगाकर बंदर हो गया. फिर कोयल, तो क के ऊपर भी एक मात्रा होकर क्या मात्रा हो गई? एक मात्रा, और साइड में खींच करके कोयल हो गया. फिर ग्रु, जो हमने रू बोला था ना, तो क्रू से फिर ग्रु में रू आएगा, तो गुरु यानी घर. फिर हिरन, हिरन में रस्व लगाकर हम हिरन बना सकते हैं. फिर कार, बरोबर. तो एक कार में हम कार के आगे जो लिटे खींचते हैं ना, तो उसके हिसाब से कार हो गया. फिर बेल, तो बेल में हम दो मात्राएं ऊपर लगाकर बेल हो जाता है. फिर आया गुलाब, बरोबर. तो गु रस्वाएला दीर्घ, तो हम रस्व लगाकर गुलाब का शब्द बना सकते हैं. इस तरह हम मात्राएं लगाकर हम जो शब्द है वो बना सकते हैं. फिर देखो बच्चों आए संयुक्ताक्षर, जो एक के साथ हम आधा या पूरा शब्द जोड़कर जो शब्द बनते हैं ना, आधा शब्द, उसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं. तो देखो इसमें जो क वत्ता ख એટલે क અને ख એટલે मक्खी हम बोलते हैं. इसमें क का भी व्यंजन है, उसका भी उच्चारण हम देख सकते हैं. फिर आया मच्छर, तो में च आधा लगाकर हम मच्छर का शब्द जो बनते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मस्कीटो कहते हैं. फिर आई चिट्ठी, तो इसमें ठ संयुक्ताक्षर आता है. फिर आया सब्जी, तो इसमें ब संयुक्ताक्षर आता है. फिर आया पत्थर, तो इसमें क्या शब्द आएगा संयुक्ताक्षर? त. फिर आया गड्ढा, गड्ढा यानी खरबचड़ो पाणो होय ने गड्ढा कहीए छीए આપણે, बराबर, खाडो होय ने, तो एमां ड संयुक्ताक्षर आव्यो. फिर प्याला, तो इसमें प वो आधा है, वो आया. फिर बिस्तर, तो इसमें स आधा आया. फिर व्यापारी, तो इसमें संयुक्ताक्षर व है, वो आधा आया. फिर आया खत, तख्ता, बरोबर, तो इसमें ख आधा आया. फिर पुष्प, तो इसमें स आधा आया. फिर आया ग्वाला, तो इसमें क्या आधा आया? ग्वाला में ग आधा आया. फिर हम संयुक्त व्यंजन देखेंगे, बरोबर. तो व्यंजन को तो आपको पता है ना, व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, बरोबर. तो हम क ख ग जो आते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं. तो संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, बरोबर, ये जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं.
तो कक्षा, बराबर। तो इसमें क्ष है वो संयुक्त व्यंजन आएगा। फिर शिक्षक, बराबर। तो एमा क्ष, एमा पर क्ष शिक्षक, ये संयुक्त व्यंजन आएगा। फिर आया क्षत्रिय, बराबर। तो इसमें त और क्ष वो संयुक्त व्यंजन आएगा। फिर त्र आता है, देखो बच्चों इसमें, तो छात्र, बराबर। एमा त्र व्यंजन आवशे संयुक्त व्यंजन। पछी मित्र, तो एमा त्र संयुक्त व्यंजन आवशे। पछी आवशे सत्रह, तो इसमें भी त्र संयुक्त व्यंजन आएगा। फिर आया संयुक्त व्यंजन में ज्ञ, देखो बच्चों इसमें जो ज्ञ है ना वो ज्ञाता, यज्ञ, विशेषण, तो ज्ञाता में ज्ञ संयुक्त व्यंजन आया। फिर आया यज्ञ, तो इसमें एक भी ज्ञ आया। फिर आया विशेषण शब्द, तो इसमें भी ज्ञ संयुक्त व्यंजन आया। फिर आया श्रमिक, बराबर। तो इसमें श शब्द है वो संयुक्त व्यंजन आया। फिर आश्रम, तो इसमें भी जो श है वो इसमें संयुक्त व्यंजन आया। फिर आया शब्द अश्रु, इसमें भी स में हम ह्रस्व लगाकर ये शब्द मिला। फिर बच्चों अब देखो पढ़ो और लिखो। इसमें हमें रीड और राइट करना है। जो शब्द जो ऊपर लिखा है वो हमें पहले पढ़ना है, बाद में जो नीचे खाली स्थान है उसमें हमें ये शब्द लिखना है। तो आपको पता चला ना बच्चों सब। पहला शब्द है मक्का, जो वो भी संयुक्त अक्षर में आया। फिर मक्खी, ग्वाला, अन्न, चिट्ठी, प्याला, कक्षा, और दूसरा शब्द लास्ट का वाला है वो मित्र, बराबर। तो आपको बच्चों समझ में आ गए ना, वो संयुक्त अक्षर बन के हम जो शब्द बनाते हैं, मक्खी, मक्का, ये शब्द संयुक्त अक्षर से बनते हैं। तो આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહીએ છીએ? જોડિયા શબ્દો કહીએ છીએ, બરાબર। तो आप लोग भी जो गुजराती की विषय की जो पढ़ाई करोगे ना, तो इसमें जो जोड़ाक्षर आएंगे उसके आप लाइन खींचेंगे ताकि आपको पता चले कि इसको हम जोड़ाक्षर कहते हैं। पढ़ो और समझो। तो देखो इसमें जो एक शिक्षिका है, इनका नाम श्रेया है। ये छात्र छात्राओं को पढ़ाती है। इनकी कक्षा में 100 विद्यार्थी है। जो लाल अक्षर के जो अक्षर दिए हैं ना बच्चों, वो सब संयुक्त अक्षर मिलके जो पैराग्राफ है वो लिखा है। फिर बाद में दूसरा पैराग्राफ आया है, यह प्रज्ञा है, यह कक्षा 3 में पढ़ती है, इसके दादाजी वैज्ञानिक है, वह उनसे ज्ञान प्राप्त करती है। तो देखो बच्चों इसमें जो आए हैं संयुक्त अक्षर, रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो सब संयुक्त अक्षर है। फिर यह आश्रम है, शिष्य साधु की बातों का श्रवण करते हैं। यहाँ शिष्य श्रम भी करते हैं। तो आपको बच्चों ये सब जो है संयुक्त अक्षर के शब्द से बनते हैं उसकी आप समझ में आ गई। अब हम अभ्यास करेंगे। ये सब जो हमने जो इस शब्द के स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर के जो शब्द देखे उसका हम सारा इस अभ्यास में देखेंगे। तो देखो बच्चों इसमें सबसे पहला चित्र है पृथ्वी, बराबर। तो पृथ्वी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा अंगूर, बराबर। अ की मात्रा लगा, अस के ऊपर जो बिंदु लगाकर हमने अंगूर बनाया है। फिर मच्छर, चित्र देखकर आपको उसके नाम लिखने हैं। फिर दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है चिट्ठी का, तो आप चिट्ठी शब्द उसके नीचे लिखेंगे। फिर थैला दिखाई दे रहा है तो उसके नीचे जो लाइन लगी हुई है उसमें आप थैला लिखेंगे। फिर जो प्याज, बराबर, આપણે એને ગુજરાતીમાં ડુંગળી કહીએ છીએ, તો એનું उसका चित्र दिखाई दे तो उसके नीचे आप प्याज लिखेंगे। फिर गट्ठा, बराबर, जो लकड़ी का भाड़ा होता है ना उसको हम गट्ठा कहते हैं, उसके हम हिसाब से इसके लिखेंगे। फिर नीचे का जो चित्र दिखाई दे रहा है वो हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, हमें तो ये जो पनीर का जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है, बराबर। फिर आवे 11, बराबर, 11 का शब्द हम नीचे लिखेंगे। फिर मिलान करो यानी जोड़ो, बराबर। तो बिस्तर में આપણે इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बेड। फिर प्याज को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओनियन। फिर ग्वाला को हम मिल्कमैन कहते हैं। फिर यज्ञ को हम यज्ञ ही कहते हैं। श्रमिक को हम
लेबियर कहते हैं, बराबर, लेबर कहते हैं, बराबर। इस तरह हमने मिलान भी किया। अब देखो बच्चों, इसमें शब्द को पढ़ो और उचित स्थान पर हमें लिखना है। तो हम ये शब्द पढ़ेंगे फिर। मस्त, अन्य, प्यास, व्यस्त, प्याज, प्याली, धन्यवाद, बस्ता और सैन्य। तो इस तरह जो शब्द है तो वो न्य, स्त और प्य, उस हिसाब से जो उसके साथ जो मिलकर शब्द बनता है इसके हिसाब से हम ये शब्द लिखेंगे। फिर जो धन्यवाद, तो न्य वाला हम बॉक्स में से निकाल कर अन्य और सैन्य, ये दो वाला इसके हिसाब से हम यहाँ देखेंगे। फिर स्त वाला शब्द इस बॉक्स में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो कि व्यस्त, मस्त और बस्ता, स्त वाला शब्द दिखाई दे रहा है। फिर आया प्य, तो प और प आधा और ये उसके साथ जॉइंट है, तो हम प्यास, प्याज और प्याली, ये तीनों शब्द प्य से बनेंगे। फिर संयुक्त वाले शब्द पर गोला लिखिए। जी देखो, जो संयुक्त अक्षर वाले हैं उस पर ही हमें गोला लगा, तो आपको पता चल गया कि संयुक्त अक्षर किसको कहते हैं। जो आधा शब्द जाता है उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो शक्त, अश्व, माधवन, पत्थर, चूहा, मक्खन, विशाल, गुच्छा, शहर और मक्खी। आपको लगेगा भाई ये श तो आधा है, पर वो आधा नहीं है, वो किसी के साथ जॉइंट नहीं है, बरोबर। तो हम इस तरह गोला करेंगे, पर शब्द को पूरा कीजिए। जो वृक्ष का चित्र है, तो हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, उसके हिसाब से इस शब्द को हम पूरा करेंगे। फिर इसमें बिस्तर बनेगा। फिर एक किसका चित्र दिखा रहा है, क्लास का चित्र दिखाई दे रहा है, तो हम हिंदी में उसको क्या कहेंगे, कक्षा। फिर एक लेटर दिखाई दे रहा है, तो हमें उसको क्या लिखना है, उसको खाली जगह में पत्र। फिर एक पुष्प का यानी कि फूल का चित्र दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पुष्प। फिर प्याला, कटोरी का चित्र, याला यानी कि प्याला का चित्र दिखाए। तो इस तरह बच्चों तुमको ये सब संयुक्ताक्षर, स्वर, व्यंजन और बाराखड़ी का जो ज्ञान हो गया, तो आप भी अपने इस बुक में देखकर अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। थैंक यू बच्चों।